Hello students and welcome back. Okay, my name is Upen Savla and we will be today basically talking about a new chapter that is called as radioactivity. तो guys radioactivity is nothing but radiation से basically related वाला chapter. Comparatively a very simple chapter, comparatively a theoretical chapter, comparatively मैं बोलूँगा थोड़ा by heart करके रखना पड़ेगा. Okay, so guys let us basically start with the today's session and I will be basically keeping the join code in front of you so that people will be able to get the join code guys. So guys the join code will be 406084. कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूंगा वेरी सिंपल सिचुएशन, हाँ बहुत सारे सिचुएशन में अगर मैं बात करूंगा गाइस तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर कहीं ना कहीं रियल लाइफ में बात करूंगा तो गाइस रेडिएशंस ऐसे देखा जाएगा तो हार्मफुल भी है बट इन सम केसेस दे आर यूजफुल ऑल्सो. नाउ पीपल विल बी वंडरिंग गाइस रेडिएशंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्या या एक्चुअली रेडिएशंस कहीं ना कहीं यूजफुल है क्या. तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा अपन जैसे जैसे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे यू ऑल विल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि गाइस सर्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट को बेसिकली क्योर करने के लिए अपने को रेडिएशंस की ज़रूरत पड़ती है. डेफिनेटली गाइस अपन ने वर्ड सुना रहेगा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, प्रेफरेबली कैंसर रिलेटेड सिचुएशन में बात करूंगा. सो आफ्टर द ट्यूमर इज बिन डिटेक्टेड देयर आर सम सिचुएशंस जहां पे अपने को रेडिएशंस देने की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम एमसीक्यूज जो बेसिकली उसके जैसे बेसिकली आएंगे. नाउ आई गेस गाइस वी विल बी वेटिंग फॉर सम टाइम बिकॉज आई गेस द लास्ट लेक्चर जस्ट गॉट कंप्लीटेड few moments back only. There are only 5 participants as of now, so we will be waiting for a moment or so and then we will be directly starting with the session. Okay, so till the time guys radiations के point of view से अगर मैं बात करूँ एक simple situation बात करता हूँ. say for example अपन अपना normal phone यूज़ करते हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं radiations है. so are these radiations comparatively useful or something called as harmful? purely अगर मैं बात करूँगा इनके energy के ऊपर है. more the energy more will be the basically the harmfulness of that particular situation. ऐसे सुना भी रहेगा हमने कि फ़ोन को कहीं ना कहीं पॉकेट के बाजू में नहीं रखते बिकॉज ऑफ द हार्ट विच इज़ नियर बाय. कहीं ना कहीं अगर बात करूंगा दैट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट गाइस. देयर आर सम रेडिएशंस विच आर पेनिट्रेटिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो. ओके, सो आई गेस देयर आर 6 पार्टिसिपेंट्स ओनली. वी विल बी वेटिंग फॉर अ मोमेंट और सो एंड देखते हैं गाइस in next 30 to 40 seconds if people are not turning up then in that case we will be going ahead with the session and let us basically talk about the various MCQs which are very important with respect to this particular chapter. Okay, so in that case guys Shash is there, Heath is there, Krishav is there and Divij is there. So now we have 7 participants. So I guess it's because of the previous lecture. I guess लोगों ने बीच में ज़्यादा ब्रेक तो नहीं ले लिया. So in that case we'll be waiting for maybe guys 10 to 15 seconds more and then we will be directly talking about the situations. Okay, मैं बोलूँगा guys एक पेन और पेंसिल भी कहीं ना कहीं पेन और पेपर भी बेसिकली ले लेना just to write those situations. Obviously guys majority of the cases में कहीं ना कहीं वो factual questions है लेकिन yes अपने को बहुत सारा चीज़ बेसिकली याद रखना पड़ेगा. ठीक है, so according to this particular chapter if I talk about the situation, चलो guys कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से that much time should be sufficient enough for basically people to join. ठीक है, in that case let us basically start with the situation and if I talk about a very simple situation it's nothing but radiations are nothing but associated within the nucleus of a particular situation. Now guys अगर मैं एटम के अंदर का बात करूंगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूक्लियस रहेगा. न्यूक्लियस के अंदर के सारे पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स करके बोलते हैं. So there are protons inside that and there are neutrons inside that. हमने न्यूक्लियर फिशन के बारे में सुना रहेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सुना रहेगा. एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी. ओके, इन दैट केस गाइस अगर मैं बात करूंगा जनरली रेडिएशन सर कहीं ना कहीं बेसिकली बात करेंगे तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. One will be called as a chemical reactions and second will be called as a radioactive reaction. The basic difference is in a chemical reaction guys the identity of the molecule is retained. मतलब अगर मैं कहीं ना कहीं कार्बन से स्टार्ट करूंगा तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे कार्बन का ही कोई कंपाउंड बेसिकली मिलेगा. लेकिन अगर मैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस का बेसिकली बात करूंगा गाइस देन द आइडेंटिटी ऑफ द मॉलिक्यूल और द एटम इज नो लॉन्गर प्रिजर्व्ड. इट चेंजेस इनटू समथिंग एल्स. जैसे यूरेनियम से स्टार्ट करोगे तो मे बी प्लूटोनियम का मिलेगा. ठीक है, चल in that case guys the first question which we will be basically doing basically goes this way.
द क्वेश्चन सेज द अल्फा रेस, द बीटा रेस, द गामा रेस आर डिस्कवर्ड बाय डैश। हु आर द साइंटिस्ट जिन्होंने कहीं ना कहीं अल्फा, बीटा एंड गामा को डिस्कवर किया था। सी टू इट दैट गाइस पीपल आर मार्किंग प्रॉपरली। टाइम ले लो गाइस, लास्ट 5 सेकेंड्स में कहीं ना कहीं मार्क करना। तुम आंसर राइट मार्क करोगे, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट रादर देन फटाफट मार्क करने के चक्कर में अपन कुछ भी मार्क कर देंगे। सो टाइम इज अप गाइस एंड लेट अस बेसिकली टॉक अबाउट द सिचुएशन, द अल्फा रेस, द बीटा रेस एंड द गामा रेस। तो ऋषिकेश इज देयर, हेत इज देयर, प्रेक्षा इज देयर, इन लोग ने राइट आंसर्स दिया है। तो गाइस कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा द क्वेश्चन with respect to situation, the alpha race was basically given by Rutherford. It is basically nothing but, याद है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का बात करते, वहां पे अल्फा रेस को बम्बार्ड किया गया था। इवन द बीटा रेस वर डिस्कवर्ड इन द सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, बिकॉज एक पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी रहेगा। सो इवन द नेगेटिव और द बीटा रेस आर बीन डिस्कवर्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। एंड गामा रेस का बात करूंगा तो गाइस इट इज विलार्ड जिसने बेसिकली डिस्कवर किया था। ठीक है, सो गाइस दिस नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द बेसिक सिचुएशन गोस। ओके, सो आई गेस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कहीं ना कहीं याद रखना गाइस, अल्फा बीटा गामा रेस वेर डिस्कवर्ड बाय सो एंड सो साइंटिस्ट। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग गाइस, एक पेन और पेपर कहीं ना कहीं रेडी रखना। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैं बोलूंगा फैक्चुअल क्वेश्चंस है, हमें बाय हार्ट करके रखने पड़ेंगे। ओके, सो आई एम श्योर गाइस हम लोग को फर्स्ट स्लाइड का आंसर आ गया रहेगा। वी आर गोइंग to the second slide guys. So the next question, I guess one person has still not marked the answer, बाकी लोग ने तो कहीं ना कहीं मार्क करके रख दिया। गाइस मैं वापस एक बार कहीं ना कहीं बोलता हूँ, इफ़ यू हैव टाइम सी टू इट दैट पीपल आर सीइंग द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली एंड देन मार्किंग द आंसर। वरना क्या हो जाएगा, फटाफट मार्क करने के चक्कर में अगर अपना रॉन्ग आंसर हो गया तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा। ठीक है, एंड प्रेक्षा कहीं ना कहीं वेंट अप, हेत इज देयर, ऋषिकेश इज देयर। 4 ऑफ द पीपल आर बेसिकली कहीं ना कहीं उन लोग ने राइट आंसर मार्क किया। इन दैट केस कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा गाइस, अपने को पूछा था द चार्ज ऑन अल्फा बीटा एंड गामा रेस। गाइस अल्फा रेस का बात करूंगा तो दीज आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियाई, एंड हीलियम न्यूक्लियाई मतलब इट विल बी एटॉमिक नंबर 2, और एटॉमिक नंबर 2 का बात करूंगा तो सबसे पहले चार्ज +2 करके जाएगा। गाइस अगर +2 एंड +2 का बात करूंगा तो यू शुड आइदर मार्क दिस और दिस एज एन आंसर, इन दोनों में से ही एक होना चाहिए। -2 तो हो नहीं सकता और +1 भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में वर्ड रेस्पेक्टिवली दिया था। अब रेस्पेक्टिवली मतलब कहीं ना कहीं अल्फा का आंसर पहले ही आना चाहिए। बीटा रेस का बात करूंगा तो व्हाट आर बीटा? बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट गाइस हीलियम इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो इन दैट केस गाइस अगर यहाँ पे और यहाँ पे 2 ऑप्शन में से चेक करना था तो भाई ये तो +1 है, ये नहीं हो सकता, ये -1 है, एंड दैट्स वाई दिस विल बिकम द आंसर। सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन को यूज करते ना तो भी कहीं ना कहीं आ जाता, सिंपल है। एंड गामा रेस आर प्योरली समथिंग कॉल्ड एज रेडिएशंस। So guys, what are alpha rays? These are nothing but helium nuclei. Beta particles are nothing but the electrons which are there, and gamma particles are nothing but the radiations, to be precise, high energized radiations which are basically there. Okay, chalo, in that case guys, we go to the next particular question, and the next question goes this way. आराम से गाइस, दे डोंट बी इन अ हरी टू मार्क द आंसर गाइस, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। Then do I guess 2 people missed up, they didn't mark the answer guys। ऐसे मत करना, लास्ट 5 सेकेंड में कहीं ना कहीं आंसर्स बेसिकली लिख देना। प्रेक्षा इज देयर, आई गेस प्रेक्षा हैज गॉट मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट एज ऑफ नाउ। सुपर यार, कहीं ना कहीं बात करूंगा गाइस, आउट ऑफ द वेरियस पीपल 5 पीपल हैव बेसिकली गिवन द राइट आंसर गाइस। अब अपने को बात करेंगे गाइस, अभी मैंने बात किया कि व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियाई। वंस अगेन वर्ड गाइस रेस्पेक्टिवली इज गिवन। अगर रेस्पेक्टिवली दिया है तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता,
तो ये वाला ऑप्शन गया आउट ऑफ क्वेश्चन। पहला रेडिएशन भी नहीं हो सकता, तो ये भी गया डायरेक्टली ऑप्शन के बाहर, और यहाँ पे भी रेडिएशन नहीं हो सकता। मतलब गाइस इन दैट केस इफ यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, डायरेक्टली पहला वाला क्वेश्चन करने के बाद ही अपने को आंसर आ जाएगा दैट इट विल बी हीलियम न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स एंड गामा पार्टिकल्स आर नथिंग बट रेडिएशंस। ओके, सो दिस विल बी डायरेक्टली स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस जो अपने को कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेसिकली पूछते हैं। ओके, चलो इन दैट केस गाइस वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन गोes दिस वे। Last 10 seconds guys, few people have still not marked, to be precise 2 people. चलो देखते हैं guys how many people have basically given the right answers. Parth has came up, then Heath is there. Oh guys, only 2 people have basically marked the right answer. एंड गाइज अगर क्वेश्चन का बात करूंगा, पेनिट्रेटिंग पावर एनी टाइम बेसिकली ज्यादा किसका रहता है, गामा रेज का रहता है ना। गाइज व्हाट डू यू मीन बाय अ पेनिट्रेटिंग पावर एंड एन आयोनाइजेशन पावर? गाइज आयोनाइजेशन मतलब मान के चलो अगर एक बड़ा पार्टिकल है वो अगर किसी एटम को हिट कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली डिसलॉज हो जाएगा, तो एक एटम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन आयन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजिंग पावर। अब जितना बड़ा एटम रहेगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करेगा ना। ऐसे सिचुएशन में बात करूंगा गाइस, हीलियम पार्टिकल्स बड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स। इसके लिए उन लोग आयोनाइजेशन के लेवल पे ज्यादा काम करेंगे, जबकि अपना क्वेश्चन था पेनिट्रेटिंग पावर। अब पेनिट्रेटिंग पावर मतलब वो कितने अंदर तक जा सकता है, दैट इज हाउ मच इट इज पेनिट्रेटिंग, एंड दैट्स वेयर द हाईएस्ट आंसर विल बी बेसिकली कॉल्ड एज गामा रेस। देन थोड़ा सा कम पेनिट्रेटिंग पावर कहीं ना कहीं बीटा रेस, और उससे थोड़ा कम पेनिट्रेटिंग पावर कहीं ना कहीं अल्फा रेस। और गाइस एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ऑल द सेम करके तो आ ही नहीं सकता था, बिकॉज तीनों रेट्स अलग अलग है, तो तीनों आंसर्स अलग अलग भी रहेंगे। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड पूछा रहेगा तो हाईएस्ट विल बी ऑफ समथिंग कॉल्ड एज गामा, बीटा एंड देन समथिंग कॉल्ड एज अल्फा। यही चीज अगर आयोनाइजेशन पावर पूछा होता तो गाइस आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसका रहेगा, अल्फा पार्टिकल। व्हाई? बिकॉज इट इज एन हीलियम न्यूक्लियर, उसके एटॉमिक साइज कंपेरेटिवली बड़े हैं, साइज ऑफ एन एटम भी कंपेरेटिवली बड़ा है। व्हेनेवर इट इज हिटिंग अ बेसिक पार्टिकल इट इज डिसलॉजिंग एन इलेक्ट्रॉन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन आयन, and that's where ionizing power of alpha rays will be basically maximum, followed by beta, followed by something called as gamma. स्पीड रिलेटेड भी बात करेंगे गाइस, गामा का स्पीड कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, एज गुड एज बेसिकली कॉल्ड एज द सिचुएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेट। गाइस अगर जिसका वेट ज्यादा रहेगा उसका कंपेरेटिव ट्रैवल करने का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। सो बिटवीन अल्फा, बीटा एंड समथिंग कॉल्ड एज गामा रेस, दीज आर हीलियम न्यूक्लियर, कंपेरेटिवली हेवियर है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स कंपेरेटिवली हल्के हैं, these are purely radiations, so they will travel the fastest, then comparatively fast will be this, and then will be something called as alpha rays. Okay, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है गाइस जो अपन एक ही क्वेश्चन से कंपेरेटिवली ज्यादा बात कर सकते हैं। ओके, चलो वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज दिस वे। Last 5 seconds guys, and the time is up and we have more number of participants now. So bye, मैं ऐसे बोलूँगा, see to it that people are there on time, and Rishikesh is there, Parth is there, Preksha is there. चलो अगर मैं बात करूँगा maximum people have given the right answer. In that case guys, there are 2 different counters guys, one is called as Geiger-Müller counter, one is called as scintillation counters. Guys both these counters are responsible for getting the amount of radiations which are there. तो radiations को calculate करने के लिए भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनके नाम कहीं ना कहीं ये वाले हैं जो अपने को बाय हार्ट होने चाहिए, and that's why the answer will be both of these. Okay, so both these counters are very important in terms of counting the various radiations. Okay,
चलो, इन दैट केस गाइस मैं ये बोलूंगा कंपेरेटिवली a question which was basically called as a factual question. Now we basically go to the next particular question, and the next question goes this way. आराम से गाइस सोच समझ के विद इन द टाइम कहीं ना कहीं आंसर देना. लास्ट 5 seconds people should mark something, because as of now there is no negative marking, so anytime people should mark all the answers. And once again I guess 2 people were left, उन्होंने शायद आंसर्स मार्क नहीं किया. एंड हेत इज देयर, प्रेक्षा इज देयर, पार्थ, ऋषिकेश, सुपर्ब यार. मैक्सिमम पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, वंस अगेन ये सिंबल क्या डिनोट करता है वो इंपॉर्टेंट है. अगर Z का बात करूंगा गाइज, दिस आर नथिंग बट एटॉमिक नंबर्स. गाइज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 1 to 20 हमें एटॉमिक नंबर्स तो बेसिकली बाय हार्ट होने चाहिए. ओके, इन दैट केस Z इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर. इट विल गिव यू द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर एटम. अगर A का बात करेंगे तो गाइज इट इज नथिंग बट द एटॉमिक मास नंबर. अब एटॉमिक मास नंबर का बात करेंगे तो गाइज इट विल गिव यू द आंसर ऑफ बोथ, दैट इज प्रोटॉन्स and neutrons which are present in a sample. Okay, so this will be called as atomic mass number, this will be basically called as atomic number. This will give you the answer of protons and neutrons, and this will only give you the answer of protons. तो गाइज अगर मुझे न्यूट्रॉन्स का आंसर चाहिए रहेगा तो ए को जेड से बेसिकली माइनस करेंगे तो अपने को कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा. द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. गाइज जेड माइनस ए बेसिकली बात करेगा तो डायरेक्टली कुछ होता नहीं है. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर अपन बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सिचुएशन, यहाँ पे कभी कभी अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लेवल पे भी बात करना चाहिए, बिकॉज पीपल शुड रिमेंबर एटलीस्ट सम ऑफ द अदर कैलकुलेशंस. ओके, सो आई गेस पीपल हैव डन फेयरली वेल. In that case, if I'm not mistaken, 8 of them have given the right answers. बस गाइस ऐसे ही क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से आंसर मार्क करो. तुम 2-3 सेकंड लेट आंसर मार्क करोगे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट पीपल शुड बेसिकली गिव द राइट आंसर. ओके, सो टेक योर टाइम. लास्ट 5 सेकंड जो बेसिकली बचेगा ना, उसमें भी आंसर्स मार्क करोगे तो चलेगा, लेकिन आंसर्स राइट होने चाहिए. ओके, चलो जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. Now this will be once again a factual question, guys. Last 5 seconds, guys. Do mark the answers. Last time also these 2 people have not marked the answers. This time also those same 2 people have not marked the answers. भाई ऐसे मत करना. I hope people are there. In that case, Rishikesh is still leading, Parth is there, superb यार. Majority of the people have given the right answer. Guys, in that case, अगर मैं बोलूँगा, अगर अपन ने नहीं भी आता रहेगा तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ सकता है. Guys, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ न्यूक्लियाई इज एक्सप्रेस्ड, मतलब एक न्यूक्लियस के लेवल पे बात कर रहे हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात चल रहा है. गाइस यहाँ पे सेंटीमीटर में बात करेगा तो क्या सेंटीमीटर या मीटर में आ सकता है क्या? गाइस हम एटम को देख भी नहीं पाते, तो अगर देख नहीं पाते तो डेफिनेटली सेंटीमीटर या मीटर में तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज एक एटम का वजन कैलकुलेट करने के लिए हम AMU का बात करते, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. इट इज सो स्मॉल दैट द आंसर्स आर कमिंग इन नेगेटिव, सो डेफिनेटली सेंटीमीटर एंड मीटर विल नेवर कम इनटू पिक्चर. आंसर कम्स एज जूल. नाउ जूल पता है क्या है गाइस? इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. अगर मुझे कभी भी एनर्जी कैलकुलेट करना है तो जूल्स में बात करते हैं, अर्ग्स में बात करते हैं, कैलोरीज में बेसिकली बात करते हैं, तो एनर्जी रिलेटेड पैरामीटर है, एंड दैट्स वेयर द राइट यूनिट विल बी बेसिकली कॉल्ड एज बान. ओके, सो इन दैट केस गाइस मैक्सिमम पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. सुपर्ब गाइस. कहीं ना कहीं लास्ट टाइम शायद 8 पार्टिसिपेंट्स थे, इस बार शायद 10 पार्टिसिपेंट्स है. सो ग्रेट गाइस, व्हाट पीपल आर बेसिकली डूइंग. चलो गाइस, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से और आराम से, यू विल गेट द आंसर. आराम से गाइस, यू स्टिल हैव टाइम.
वंस अगेन दीज टू पीपल आर नॉट देयर, मतलब बाकी लोग ने, सब लोग ने आंसर दे दिया है। चलो देखते गाइस, हु इज लीडिंग एज ऑफ नाउ। स्टिल ऋषिकेश इज देयर, पार्थ इज देयर, प्रेक्षा इज देयर, and 4 people have basically given the right answer, that is called as isotones. So in that case guys, कहीं ना कहीं अपने को हर एक वर्ड के बारे में बात करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का बात किया है, तो गाइस दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियॉन्स करके। अगर आइसोटोप्स का बात करेंगे तो गाइस अपन ने कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में सुना रहेगा। कार्बन इज हैविंग 12, 13 एंड 14 आइसोटोप्स। सभी कार्बन है ना, और अगर सभी कार्बन है तो सभी के एटॉमिक नंबर भी सेम रहेंगे, और सबके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे मतलब दे विल बी कॉल्ड एज आइसोटोप्स, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं सेम रहता है। सारे कार्बन रहेंगे या सारे क्लोरीन करके रहेंगे। आइसोटोन्स करके बात करेंगे तो यस, दिस इज अवर राइट आंसर, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो गाइस कभी भी दैट इज एटॉमिक मास नंबर, उसका अगर आंसर अपने को मिल गया तो दीज आर नथिंग बट द स्पीशीज विच आर बेसिकली कॉल्ड एज आइसोटोन्स। गाइस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बात करूंगा तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, खाली प्रोटॉन्स यहाँ पे हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का बात करूंगा गाइस, तो जहां पे भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे वहां पे कहीं ना कहीं उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज करके बोलते हैं, बिकॉज दे आर मोर और लेस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अपने को चार्जेस चेक करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो इसके लेवल पे भी बेसिकली बात करेंगे। एंड आइसो डायफोर्स बात करेंगे तो दे आर हैविंग सिमिलर साइजेस ऑफ वेरियस सिचुएशंस विच आर देयर, एज ऑफ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बट येस सिमिलर साइजेस करके बाहर करना अभी के लिए अपना काम बेसिकली निकल जाएगा। ओके, सो दीज आर द वेरियस टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे गाइस। अपने चारों ऑप्शन से अपना अलग अलग पार्ट भी बेसिकली पढ़ के होता है। ओके, so guys once again I'll say कि people have not given the right answer for this particular question। मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करने का, अगर अपने को प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मतलब कौन सा कंफर्म नहीं हो सकता पहले उसको बाहर निकालने का, फिर कहीं ना कहीं उन दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं राइट ऑप्शन को मार्क करने का। ओके, सो इन दैट केस सी टू इट दैट पीपल आर marking it very properly and we go to the next question, and the next question goes this way। लोगों ने आंसर दे भी दिया गाइस, द क्वेश्चन विल नॉट बी दैट इजी। दैट गिव्स मी एन आइडिया कि गाइस हम लोग कहीं ऐसे ही तो मार्क नहीं कर रहे हैं, इसको तो गाइस अच्छा खासा टाइम लगता है। Two persons have still not given the answers. Guys, last 10 seconds. Do mark something, because in that case and अगर मैं बात करूंगा गाइस, देखते some people have given the right answer and these are called as isotopes। चलो गाइस ऐसे सिचुएशन में बात करता हूँ, तेरा 6 people who have given the right answer, लेकिन गाइस इसको डिस्कस करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज नॉट दैट सिंपल। लेट अस बेसिकली टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड इफ आई टॉक अबाउट द आंसर्स द क्वेश्चन बेसिकली गोज दिस वे। तो गाइस क्वेश्चन कुछ ऐसा था, दैट आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच इज देयर। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो गाइस दिस इज द वे कहीं ना कहीं अपना नॉर्मल एटॉमिक कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर वाला जो भी रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर, नीचे जो भी रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। आइडियली स्पीकिंग ऊपर वाले को ए लिखना चाहिए, लेकिन गाइस क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वैसा अपने को बात करना पड़ेगा। सो हियर एम विल बी कॉल्ड एज द एटॉमिक मास नंबर, कैन बी कॉल्ड एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नीचे वाला विल बी कॉल्ड एज प्योरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट विल बी बेसिकली नथिंग बट द एलिमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर 6 करके रहेगा मतलब वो कहीं ना कहीं कार्बन है, दैट इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई द सिचुएशन। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो गाइस इसमें से पहले अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, अपने को एक्स का आंसर मिल रहा है, फिर एक्स में से बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, अपने को वाई का आंसर मिल रहा है, और वाई में से भी बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है और अपने को जेड का आंसर मिल रहा है। मतलब दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांजिशंस विच आर टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहले तो अपन कहीं ना कहीं मेन एलिमेंट लिख देते। अब गाइस इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है
तो अपने को ये पता होना चाहिए ना अल्फा पार्टिकल है क्या। गाइस अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट कॉल्ड एज हीलियम पार्टिकल्स। अब हीलियम पार्टिकल्स को लिखते कैसे हैं? देन गाइस हीलियम पार्टिकल्स आर रिटन एज 4He2 करके, इसका एटॉमिक मास नंबर 4 करके जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 करके जाएगा। इन दैट केस गाइस द अल्फा पार्टिकल इज गेटिंग लॉस्ट क्योंकि माइनस किया हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस अल्फा पार्टिकल है तो गाइस ऊपर वाले आंसर में से 4 को माइनस करना पड़ेगा और नीचे वाले आंसर में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अपने को m और z का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो हम खाली क्या लिखेंगे, ऊपर वाले आंसर में से -4 हो जाएगा और नीचे वाले आंसर में से -2 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ एन एलिमेंट विच विल बी टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्स्ट ट्रांजिशन, दैट इज द फर्स्ट एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। ये वाला है कहीं ना कहीं x का आंसर गाइस, लेकिन अपने को x नहीं पूछा है, अपने को z पूछा है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से एक बीटा पार्टिकल को एमिट करेंगे। तो गाइस जैसे ही एक बीटा पार्टिकल को एमिट करेंगे, व्हाट आर बीटा पार्टिकल्स? नाउ बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर। और इलेक्ट्रॉन्स को लिखा कैसे जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन को वजन रहता है क्या? नहीं, मतलब ऊपर प्रेफरेबली 0 करके आएगा, नीचे कहीं ना कहीं चार्ज लिखा रहता है, मतलब प्रेफरेबली डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ चार्ज दैट इज -1। तो बीटा पार्टिकल को लिखते हैं 0E-1 करके। तो गाइज माइंड यू दिस इज द एंटायर द स्ट्रक्चर और द वे बाय विच बीटा पार्टिकल्स आर रिटन। इन दैट केस अगर एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो ये पूरा वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो गाइज माइनस हो जाएगा मतलब यहाँ पे -4 के बाजू में -0 लिखेंगे और यहाँ पे -2 के बाजू में -1 लिखेंगे। तो गाइज कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -4 तो पहले से ही था और -0 बिकॉज वो वाला आंसर इसमें से सबट्रैक्ट होगा। ओके तो गाइज यहाँ पे 2 माइनस है, एक 2 के बाजू वाला माइनस वो तो एमिट हो रहा है इसके लिए माइनस, एंड वाई ब्रैकेट में -1, द आंसर इटसेल्फ इज माइनस, इसके लिए कहीं ना कहीं -1 लिखेंगे। तो गाइज यहाँ पे -4 -0 आंसर तो -4 ही रहेगा, बिकॉज -4 से तुम 0 को प्लस करो या माइनस करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। यहाँ पे माइनस ऑफ -1 है मतलब ये +1 करके चले जाएगा, और अगर कहीं ना कहीं +1 करके बेसिकली चले जाएगा तो दिस इज -2 एंड दिस इज +1, तो -2 +1 द आंसर विल बी टेकन एज -1 एंड दैट्स वेयर -1 एंड -4 गेट्स रिटेन्ड। दिस इज द आंसर ऑफ समथिंग कॉल्ड एज y। दिस इज हाउ द कैलकुलेशंस आर बेसिकली डन। अब अपने पास ये वाला पार्टिकल है, दिस इज नथिंग बट द y वाला वर्जन। इसमें से एक और बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है, इसमें से अगर एक और बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है तो वंस अगेन जो भी एग्जिस्टिंग आंसर रहेगा उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। वापस कैसे लिखेंगे, एक तो -4 है तो बाजू में -0 लिखेंगे और ये -1 है, तो गाइस यहाँ पे 2 माइनस आएंगे। कौन से 2 माइनस? एक माइनस क्योंकि वो एमिट हो रहा है वो वाला माइनस, और एक ये माइनस बिकॉज द ओवरऑल आंसर इज -1 एंड दैट इज वाई दिस माइनस इनटू दिस माइनस विल बिकम प्लस। सो यहाँ पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे अगर बात करेंगे -1 + 1 तो गाइस -1 + 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और अपने को अपना मेन एलिमेंट मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ZAm-4। अब अपने को Z कंपेयर करना है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। तो गाइस कहने से यहाँ पे भी Z है एंड इन द क्वेश्चन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं Z है। अगर दोनों का Z वैल्यू बेसिकली सेम है, इसका मतलब क्या है, दे आर बेसिकली नथिंग बट द answers of the same element, and precisely they will be basically called as isotopes guys, because if the atomic numbers are basically same then it will be basically called as isotopes. तो guys these are the ways by which the calculations are done. अभी एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया है तो 4 और 2 को माइनस करने का, एक पार्ट अल्फा पार्टिकल अंदर जाएगा तो ये दोनों वैल्यू को ऐड करने का, दैट इज द ओनली सिचुएशन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो ये एग्जिस्टिंग वैल्यू में से माइनस करने का, और अगर वो ऐड होता रहेगा तो कहीं ना कहीं प्लस करने का, समझाइए। सो इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सच न्यूमेरिकल्स इज वेरी सिंपल एट द सेम टाइम वेरी कॉन्सेप्चुअल। हम इतना फास्ट तो आंसर नहीं दे सकते। सो इन दैट केस गाइस मैंने जब ये क्वेश्चन सामने रखा था तो आई हैव सीन गाइस फ्यू पीपल हैव गिवन द आंसर्स वेरी फास्ट। आई जस्ट होप गाइस ये वाला कैलकुलेशन अपने को आता रहेगा, और नहीं आता रहेगा तो गाइस दीज आर द वेज बाय विच वी हैव टू रिमेंबर द आंसर्स, दैट एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल निकलेगा तो जो लास्ट एलिमेंट बनेगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट का आइसोटोप करके जाएगा। ये अपने को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ओके सो दिस इज द वे बाय विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन। सो सर्टेन क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस जो अपने को याद रहना चाहिए। ओके चलो लेट अस बेसिकली गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन दैट केस
जस्ट इन केस गाइस इफ पीपल वांट अ स्नैप, मैं बोलूंगा एक स्नैप निकाल के रख देना. इट्स अ वेरी गुड न्यूमेरिकल गाइस विच पीपल विल बी बेसिकली टॉकिंग. ओके, चलो इन दैट केस गाइस वी विल बी स्विचिंग द स्लाइड. वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट वन एंड वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड अपन अभी तक बेसिकली बात कर रहे थे दैट आइडेंटिफाई जेड. नाउ पीपल हैव आइडेंटिफाइड द जेड. वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज दिस वे. आराम से गाइस, वंस अगेन पीपल आर मार्किंग द आंसर्स ऐसे ही, आई गेस कैसे मत करो. We'll have to see the options very carefully. Eleven people have marked the answers. Guys, still you have 20 seconds. आराम से. Last 10 seconds guys. Now it's the time where you should basically mark the answer. जो एलिमिनेट हो गया उसको निकाल दो. Still 2 to 3 people have no longer marked the answers. In that case चलो देखते हैं guys. राधिका came up, Sharnapreet came up. And 5 people have basically more or less got the right answer. 5 people have got the wrong answers. So I should say 5 plus 4, 9 people have basically got the wrong answers. चलो guys, इसको भी कहीं ना कहीं basically पढ़ते हैं in the form of a question. That question basically goes this way. तो guys, question अपने को ऐसे दिया था. Question बोला था which of the following sets are basically isoelectronic. Once again isoelectronic का मतलब क्या था? They are having same number of electrons. ठीक है. तो गाइस अगर अपने को एक भी नंबर अलग मिला, मतलब सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. तो वी हैव 4 ऑप्शंस. एक भी नंबर अलग मिला तो आगे कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कहीं ना कहीं कैलकुलेट करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है. ऐसे सिचुएशन में नाइट्रोजन 2- है, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? द आंसर इज 7. अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे क्या ऐड करेंगे? गाइस N 2- है, मतलब इट इज एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने भी रहेंगे अपने को और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा. इसका एटॉमिक नंबर 7 है. 7 ने 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया, मतलब फर्स्ट वाले का आंसर 9 करके जाएगा. सिमिलरली ऑक्सीजन का बात करूंगा, वो 2- है. सो इन दैट केस गाइस कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा दैट ऑक्सीजन इज बेसिकली नथिंग बट हैविंग एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8. तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही रहेगा. ऊपर से उसने 2 एक्सेप्ट किया है, मतलब द टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन एज 10. इतना ये सॉल्व करने का एग्जाम में. अभी के लिए तो मैं सब कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन गाइस क्या बोला था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अगर एक भी नंबर अलग अलग मिल गया मतलब वो अपना आंसर तो एनी विच केस नहीं रहेगा. F+1 लिखा है. फ्लोरीन द एटॉमिक नंबर इज 9. 9 और +1 है. +1 मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है. अटक गए गाइस, तो मेरे हिसाब से तुमको हमेशा याद रहेगा सोडियम को +1 करके लिखते. एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो गाइस इट इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स वाई इट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मेटल. दैट्स वेयर कभी भी प्लस आया मतलब दैट इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो गाइस टोटल 9 था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब आंसर 8 करके आएगा. और नियॉन का एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं 10 है एंड दैट्स वेयर इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो गाइस एनी विच केस ए ऑप्शन तो अपना नहीं रहेगा. दूसरा वाला बात करते, ये N-3 है, मतलब नाइट्रोजन का कहीं ना कहीं 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही, प्लस उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब अ टोटल ऑफ समथिंग कॉल्ड एज 10 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन -1, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते बिकॉज एटॉमिक नंबर 8 है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो वो 9 होगा. वंस अगेन ये 2 एलिमेंट चेक किया, अपना ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग नंबर है. ऐसे सिचुएशन में सिर्फ कैलकुलेट करके बताऊं, F-1, F का एटॉमिक नंबर बात करूंगा गाइस, द आंसर इज 9. 9 में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो ये भी 10 करके जाएगा. और नियॉन तो एनी विच केस 10 है. बाय द वे सारे नियॉन 10 करके ही लिखा हुआ है. नियॉन में कोई भी चेंजेस नहीं है बिकॉज इट इज एन इनर्ट गैस. ओके, चलो यहाँ पे बात करते नाइट्रोजन +3. अब नाइट्रोजन +3 मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसके पास 4 ही बचेगा. ऑक्सीजन +2 करके जाएगा. ऑक्सीजन +2 मतलब ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया गया. अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो टोटल 8 था उसके पास,
उसमें से 2 डोनेट कर रहा है, तो आंसर विल बी टेकन एज 6। F+1 मतलब 9 है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एंड दैट्स वेयर द आंसर विल बी टेकन एज 8। नियॉन का वंस अगेन द आंसर इज 10। वंस अगेन गाइस द आंसर्स आर नॉट मैचिंग, देन ऑब्वियसली गाइस लास्ट आंसर ही रहेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं गाइस, नाइट्रोजन के पास बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इज 7, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, द आंसर विल बी टेकन एज 10। ऑक्सीजन द एटॉमिक नंबर इज टेकन एज 8, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 2 एक्सेप्ट करके रखा है, मतलब कहीं ना कहीं आंसर इज 10। F- का एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं 9 करके जाएगा, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, मतलब वंस अगेन 10, एंड नियॉन इज वंस अगेन समथिंग कॉल्ड एज 10। समझाइए। सो दीज आर द वेज बाय विच पीपल हैव टू बेसिकली गेट द आंसर्स। तो भाई बहुत ध्यान से, बहुत आराम से अपने को ऐसे क्वेश्चंस को चेक करना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे गाइस, अपने पास 4 वैल्यूज है, तो गाइस तुम्हें चारों चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले 2 में ही तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगा कि अपना वो आंसर रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ पे पहले 2 सॉल्व किया, नहीं है, यहाँ पे 2 सॉल्व किया, नहीं है, यहाँ पे 2 सॉल्व किया, नहीं है, तो यही आंसर रहेगा। समझाइए। सो दीज आर कॉल्ड एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। Don't solve all the answers if you know to calculate, guys. This is how you can become comparatively faster in attempting the question. Okay, chalo guys, we go to the next particular question, guys. In that case, the next question जो अपन बात कर रहे थे guys goes this way. आराम से गाइस, कोई घाई नहीं अपने को, बट यू शुड ऑलवेज गेट द राइट आंसर, दैट्स आवर मोटो। नाउ पीपल शुड मार्क ऑल द आंसर्स गाइस, मतलब जिसने भी मार्क नहीं किया है, हार्डली 3 सेकेंड्स बाकी है गाइस। And guys, 3 people have not marked the attendance, not marked the answers. So in that case, guys, हमेशा याद रखना, लास्ट 5 सेकेंड तुम्हारे लिए डेडलाइन है। In that case, you should basically mark the answer. And as of now, only 1 people have basically given the right answer. And कहीं ना कहीं बात करेंगे, तो चलो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। अब अपने को पॉजिट्रॉन का बात किया है। What is a positron guys? It is nothing but a oppositely charged electron. तो गाइस अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल का बात करूंगा 4He2, दिस इज नथिंग बट अपना अल्फा पार्टिकल। अगर 0E-1 का बात करूंगा, दिस इज नथिंग बट अपना इलेक्ट्रॉन, उसे पॉजिट्रॉन नहीं बोलते। अगर मैं कहीं ना कहीं ये वाला बात करूंगा, दैट इज 2He4, भाई ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। एंड दैट्स वेयर 0E+1 इज नथिंग बट द आंसर ऑफ अ पॉजिट्रॉन। ओके, एटलीस्ट गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि तुम लोग ये दोनों तो मार्क नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये तो अल्फा पार्टिकल है और ये तो बीटा पार्टिकल है, अपने को तो पॉजिट्रॉन बोला है। तो गाइस पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, सो आई होप गाइस आज के बाद कहीं ना कहीं हमें याद रहेगा कि पॉजिट्रॉन को लिखते कैसे है। ओके, चलो इन दैट केस कहीं ना कहीं वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन गोस दिस वे। आराम से गाइस, see whatever is written and then mark the answer. मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करो कि ये तो हो ही नहीं सकता। रिमूव द ऑप्शंस। Last 5 seconds guys, do mark the answers if people have not marked. And the time's up. So there's no changes in the leaderboard, still Rishikesh is leading the answer, so only 2 people have basically given the correct answers. So in that case guys, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। चलो कहीं ना कहीं बेसिकली डिस्कस करते हैं विद द लास्ट सिचुएशन गाइस, दैट व्हाट आर दीज। इन दैट केस गाइस अपने को ये आंसर्स बेसिकली पता होना चाहिए। बाय द वे गाइस, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन
जो ऑप्शंस के फॉर्म में था, दैट वाज बेसिकली कॉल्ड एज अ मैजिक नंबर गाइस। मैजिक नंबर का बात करूंगा गाइस, यहां पे अगर मैं बात करूंगा द न्यूक्लियर विद 2, 8, 20, 28, 50, 82, 86 न्यूट्रॉन्स रहेंगे या प्रोटॉन्स रहेंगे, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर पर्टिकुलरली स्टेबल एंड अबंडेंट इन नेचर एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स आर नथिंग बट ऐसा देखा गया है कि ये आंसर्स कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए। इट इज बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर गाइस। अब ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा गाइस न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मास डिफेक्ट क्या है, तो भाई अपने को ये कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो जस्ट कहीं ना कहीं वर्ड अपने को पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इन दैट केस द क्वेश्चन विल बेसिकली गो दिस वे गाइस, व्हाट इज अ न्यूक्लियर पोटेंशियल? इट इज नथिंग बट द प्रोटॉन टू प्रोटॉन इंटरेक्शन बोल लो, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन इंटरेक्शन बोल लो, या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इंटरेक्शन बोल लो। So the attractive power of this particular situation will be basically called as the nuclear potential। तो सबको बेसिकली बात करेंगे या एक एक को बात करो, इन अ वे टोटल जो पुल बेसिकली मिलेगा that will be basically called as the nuclear potential। it will basically lead to the stability of a particular compound। okay, so that is what people have to remember। nuclear binding energy मतलब जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता रहेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बात करूंगा गाइस, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड for holding the nucleons together, precisely speaking the protons and the neutrons together within the nucleus will be called as the nuclear binding energy। and mass defect बात करेंगे guys, तो कभी कभी क्या होता है, expected answers अपने को नहीं मिलते। that's why there is a defect which is called as a mass defect because these are radiations। कभी भी radiations एक एटम पे हिट करेगा तो point of contact पे collision होगा, उस collision के वजह से certain energy will be transformed। सपोज अगर एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी गया तो गाइस एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। आइंस्टाइन का इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। कभी भी अगर एनर्जी रहेगा तो वो कभी कभी थोड़ा मास में कन्वर्ट हो जाता है या मास कभी कभी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा अपने को एक्सपेक्टेड आंसर्स जो मिलना चाहिए वो बेसिकली मिलता नहीं है एंड दैट्स व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस while holding the protons and neutrons a certain mass is lost because the energy is required to hold that particular situation। तो हमेशा एक कैलकुलेशन में एक छोटा सा मास बेसिकली हमेशा कम ही मिलेगा। that will be basically called as the mass defect। mass defect is basically calculated using a formula delta m is equal to the calculated mass minus the observed mass। गाइस कैलकुलेटेड मास मतलब जो अपन ने ऑन पेपर कैलकुलेट किया है, और ऑब्जर्व्ड मास मतलब जो अपने को एक्सपेरिमेंट से मिलता है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, तो कैलकुलेटेड मास कैसे निकालेंगे? तो गाइस टोटल मास किसको होता है? प्रोटॉन को होता है, न्यूट्रॉन को होता है और इलेक्ट्रॉन को भी होता है। तो गाइस इस तरीके से अपन उसे लिखेंगे, इट विल बी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाई जेड? बिकॉज गाइस जेड इज अटोमिक नंबर, तो जेड वो इंडिकेट करता है, और ए माइनस जेड हमें न्यूट्रॉन्स देगा। तो दिस विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of electrons, number of neutrons, and this will be mass of proton, mass of electron and mass of neutron। so guys this is how you calculate the calculated mass। experiment से observed mass मिलेगा और बस हम उसे basically subtract कर लेंगे तो भाई हमें answers मिल जाएंगे। okay, so you should basically at least know the words which are comparatively important। you should always remember these situations, these are very important। तो मैं बोलूंगा जस्ट इन केस इफ पीपल डोंट हैव, एक स्नैप लेके रख देना, कहीं ना कहीं अपने को काम आएगा इन द कैलकुलेशन। ओके, सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स बेसिकली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ नाउ गोस दिस वे। So the question says, so only 2 people have basically given the right answers। in that case चलो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को देख लेते गाइस। क्वेश्चन बोलते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस इज गवर्न्ड बाय विच फॉर्मूला। तो गाइस द फॉर्मूला इज दिस,
जहाँ पे इसको कहीं ना कहीं के भी बोलते हैं, लैम्बडा भी बोलते हैं। कभी यहाँ पे अपन देखेंगे तो लैम्बडा से लिखा रहेगा या फिर स्मॉल के से लिखा रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज द डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन द टाइम विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर बेसिकली डूइंग दैट रिएक्शन। एंड व्हाट इज N0 एंड NT? Guys, N0 will be the initial concentration and NT will be the final concentration which is left. तो गाइस कभी भी जब रेडियो एक्टिविटी के कैलकुलेशंस करते हैं तो इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इट विल बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल बी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल बी टाइम, और यहाँ पे अपने को कहीं ना कहीं डी के कॉन्स्टेंट का आंसर बेसिकली मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा गाइस यहाँ पे फॉर्मूला ही रॉन्ग है, यहाँ पे नॉर्मल टी आना चाहिए, यहाँ पे टी हाफ लिखा है, इसके लिए ये आंसर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज टी हाफ? इट इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल। यहाँ पे भी वंस अगेन टी हाफ लिखा है, प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे फ्लिप कर दिया है, तो वो भी आंसर नहीं रहेगा, बिकॉज योर आंसर शुड बी N0 by NT एंड नॉट NT by N0। एंड गाइस लास्ट ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला इट विल बी 0.693 अपॉन कहीं ना कहीं लैम्बडा, जो अपने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। ओके, so these are the formulas which you have to basically remember. So that is one thing which people have to basically talk about. Let's basically go to the next question guys, and the next question goes this way. I guess यहाँ पे तुम्हारे पास शायद 5 ऑप्शंस है। Choose the very correct option, okay? Last 2 seconds guys. And कहीं ना कहीं 5 people have given the right answer. In that case guys, the question basically goes this way. The unit of radioactivity guys, ये सब यूनिट्स है, इसके लिए मुझे एक और ऑप्शन बेसिकली इंक्रीज करना पड़ा, जनरली होता तो नहीं है। क्यूरी इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ द मैडम क्यूरी, जिसने साइंटिस्ट ने ढूंढा था। रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, इसके लिए वो। Anthony Becquerel was called as the father of radioactivity guys, because he was the first person to get an idea about something called as radioactivity, and then it is basically calculated in disintegrations per second, जिसको DPS करके बोलते हैं। तो गाइज ये सारे ही यूनिट बेसिकली राइट है, एंड दैट्स वेयर द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, कि रेडियो एक्टिविटी को इन सब यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इन सब यूनिट में कैलकुलेट किया जाएगा, हर एक का कन्वर्जन्स भी रहेगा। So I give you the conversions guys in the form of a question. Let us basically go to the next question guys, and the next question goes this way. One Curie is how much disintegration per second? Guys, it's a value, it's a constant value जो अपने को बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। And the time's up. And only 4 people have given the right answer guys. याद रखना guys, the answer is 1 Curie is approximately 3.7 into 10 raised to 10 रहेगा। ओके, यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं था, इसके लिए ये आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे पावर बराबर नहीं था, इसके लिए ये भी आंसर बेसिकली रॉन्ग है। सो यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर द वैल्यू दैट 1 Curie is 3.7 into 10 raised to 10. Okay, similar guys, there are still 2 units which will be coming into picture, that is Rutherford and something called as Becquerel. Okay, we go to the next question guys, and the next question goes this way. One Rutherford is how many DPS? That's it, disintegration per second. Last 5 seconds guys to mark the answers.
एंड द टाइम्स अप. पार्थ कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजिशन पे आ गया. इन दैट केस 4 पीपल हैव बेसिकली गिवन द राइट आंसर्स. इन दैट केस गाइस 1 रुदरफोर्ड का बात करूंगा गाइस. द आंसर इज 10⁻⁶. ओके, दिस पीपल हैव टू रिमेंबर दैट 1 रुदरफोर्ड को डीपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे, दैट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स. द आंसर विल बी टेकन एज 10⁻⁶. ओके, so that is one more thing guys which people have to basically remember. The next question basically goes this way. Now it will be becquerel versus dps. Okay, what is becquerel ka conversion with respect to dps? Guys, these are very important values guys जो अपने को याद रहने चाहिए. Okay, and the time is up guys. And guys the answer is they are equal. Okay, so यहाँ पे तो basically कोई चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए guys. If they are equal मतलब 1 becquerel ही 1 dps है. So guys in that case people have to remember that the answer will be taken as 1 because becquerel बोलो या dps बोलो the answer remains the same. Okay, so in that case next time do remember guys, first वाला 3.7 था into 10⁻10. सेकेंड वाला बात करूंगा तो गाइस 10⁻6 था. एंड becquerel एंड डीपीएस का बात करूंगा द आंसर इज दे आर इक्वल. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस विच विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द यूजेस ऑफ रेडिएशन. इज देयर एनी यूज ऑफ रेडिएशन? तो यस, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन बट द क्वेश्चन इज कमिंग इन अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर. And guys, the very saddest part will be that people are not marking the answers. Guys, वो जो लास्ट जो 5 सेकंड बचेगा ना, see to it that तभी अपन मार्क करके रखेंगे because अपना आंसर शायद चेंज हो सकता है. Okay, so guys 3 people are basically given the right answers, rest people are basically not given. Guys, it is fission and fusion. वो भी वर्ड रेस्पेक्टिवली किया है. फिशन मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकिंग होगा. तो गाइस ब्रेकिंग तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होगा बिकॉज अपन जब पढ़ते तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही पढ़ते. बिकॉज जब यूरानियम को वैसे ही रख दोगे वो खुद से ही बेसिकली टूट जाएगा ना, उसको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो फिर वो टूटेगा ही नहीं. और अगर ऐसे सिचुएशन में हम बात करेंगे फ्यूजन, कोई भी मॉलिक्यूल को मर्ज करने करेगा, इट विल नॉट टेक प्लेस दैट इज इजीली. इट विल बी रिक्वायरिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस के अंदर बम्बार्ड कर रहे. So the second part will be basically called as a high temperature and the first one will be called as an ordinary temperature. Okay, so this is the application of radioactivity. Next 3 questions are based on applications of radioactivity only. चलो देखते हैं. Which example is basically used as a bone marrow treatment? It's a common element which is present in our body guys. A small hint from my side. हम लोग जनरली हीमोग्लोबिन पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, तो चलो कहीं ना कहीं देखते हैं विद हाउ मेनी पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. So there are some changes definitely. So in that case guys, only 2 people have given the right answers guys. In that case याद रखना guys, बोन मैरो ट्रीटमेंट के लिए अपने को आरबीसीज की जरूरत पड़ती है और समवेयर आरबीसीज का बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन कनेक्ट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन के अंदर द वर्ड हीम इज बेसिकली कनेक्टेड टू आयरन एंड दैट इज वाई आयरन वाला एक आइसोटोप इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ओके, सो दैट इज कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट. डू रिमेंबर नेक्स्ट टाइम दैट बोन मैरो ट्रीटमेंट के लिए बात करेंगे, आयरन वाला आइसोटोप इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स नेक्स्ट. थोड़ा रिलेट करना गाइस, ये वाला आई गेस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, डायरेक्टली कुछ रिलेट नहीं होगा बट यू विल हैव टू बाय हार्ट एंड कीप गाइस कि व्हाट इज बेसिकली यूज्ड इन ट्यूमर डिटेक्शन ऑल्सो एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो. तो कैंसर्स को बेसिकली ट्रीट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से
सिचुएशन को यूज किया जाता है, कौन से एलिमेंट को यूज किया जाता है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन से निकालो ना. यू स्टिल हैव 5 seconds. So Parth came first, Rishikesh went second, Preksha, Krishav. चलो guys, superb. Cobalt कहीं ना कहीं यूज होता है. 7 people of them are basically given the right answer. तो yes, tumor detection and treatment is done by something called as cobalt. Okay, and we go to the final question guys. Similar question. ये बहुत obvious question है और फटक से आ भी जाएगा, ऐसे मेरे को लगता है. People are talking about thyroid. नॉर्मल डे टू डे इंग्रेडिएंट नमक के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजमेंट्स में भी सुना रहेगा. So 6 people have given the right answer. Guys, thyroid is nothing but connected to something called as iodized namak, because generally वो iodine का point of view रहता है. So iodine 131 वाला जो isotope है, that is basically used in that particular situation. Guys, cobalt तो कहीं ना कहीं अभी अपन ने पढ़ा, वो दूसरे के लिए यूज होता था. Radium is something different and chromium is also basically different. So the substance which is used is basically iodine 131, which is basically helping in the thyroid treatment. Okay. चलो, in that case guys, this is what we will be doing in this particular chapter. This is what guys people have to basically remember. This is what people have to basically think and keep. यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस अपने को पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कौन सा एलिमेंट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो पढ़ना पड़ेगा. एप्लीकेशंस के रेडिएशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पे अपने को कैलकुलेशंस आना चाहिए. एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, एक अल्फा पार्टिकल अब्जॉर्ब होगा, बीटा एलिमिनेट हो रहा है, बीटा अब्जॉर्ब हो रहा है. Those are the situations which people have to basically talk about the situations. Okay, so the first person is basically Parth, Rishikesh, Preksha, Radhika, and so on and so forth guys, where people are basically there. Let's basically see the reports guys. In that case कितने लोगों ने right answers basically दिया है. It's very important guys. Out of so many questions, 11 questions are correct, 10 questions are correct, and then कहीं ना कहीं मैं बात करूँगा, then the numbers are going on decreasing. That's comparatively the situation. Okay, so मेरे हिसाब से गाइस ये वाला पार्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने को. ठीक है, so as of now that's it from my side. This is where we complete the entire chapter of radioactivity. Okay, that's it guys, bye from my side. Okay, चलो मिलते हैं next time.